Hello students, good morning to all. स्टूडेंट्स इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 14th ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 14th ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਥਿਕਸ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 14.8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। The issue of human rights have become very popular over the world। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ all over the world। Human rights ensure the freedom to a person to lead his or her life in a way one likes। Human rights ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਓਕੇ। when some government regulation or some organization try to interfere in the way of life of a person, then resistance come from the concerned individuals as well as from the civil society। अगर कोई भी चाहे गवर्नमेंट ਦੇ ਰੈਗੂਲੇशंस इस तरीके ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ जो परसन है उसकी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਸਟਮਰਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦੈਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਆਮ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਮ ਪੀਪਲ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦੀ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਕੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਫਸਟ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਲਿਬਰਟੀ। ਲਿਬਰਟੀ ਮੀਨਸ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਟੇਕ ਹਰ ਓਨ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਉਸਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਓਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 6 to 14 ਈਅਰਸ ਦੇ ਜੋ ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਨ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ। ਹਰੇਕ ਇੰਪਲੋਏ ਜੋ ਸੇਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੂਮੈਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸੇਮ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਵੇਜਿਸ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੈਂਡਰ, ਕਾਸਟ, ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ, ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਕੇਸ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ
ਲਈ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ cases for human rights. Okay, first point is protecting against human injustice. किस लिए ह्यूमन राइट्स जरूरी है? की कह रहे हैं, कहते कि अगेंस्ट दी ह्यूमन इंजस्टिस में हो रही है, जो पावरफुल परसनस होंगे है सोसाइटी दे विच वो एक्सप्लॉयट करते हैं जो विकर सैक्शनस होंगे, ठीक है, जो पावरफुल परसनस है वो एक्सप्लॉयट करते हैं विकर सैक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो ह्यूमन राइट्स अगर होणगे, हरेक परसन राइट्स नू समझूगा, ठीक है, दैन कि यह एक्सप्लोटेशन नू प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सैकेंड इज चैक ऑन पावर्स नीडर, देयर इज़ नीड टू स्टॉप द स्टेट बाय फ्रॉम यूजिंग पावर टू एक्सप्लॉयट द कॉमन पीपल। ये भी सेम पॉइंट ही है कि पावर्स दे नाल एक्सप्लॉयट करते, जिस को ज़्यादा पावर होंगी है उस जो विकर सैक्शन होंगे उसनों एक्सप्लॉयट करते, सेम तरीके नाल ही है। लेकिन इस क्या है कि इसनों कंट्रोल किया जा सकता है बाय पुटिंग लॉज, लेजिस्लेटिव एंड रेजिंग पब्लिक ओपीनियन अगेंस्ट सच प्रैक्टिसिस। पब्लिक की की ओपीनियन है, पब्लिक अगर आवाज़ उठाऊगी इसके अगेंस्ट, दैन इसनों कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड इज़ फ्रेमिंग पॉलिसीज़ फॉर प्रोटेक्टिंग राइट्स। गवर्नमेंट को की चाहिए पॉलिसीज़ फ्रेम करे, लॉज बनावे जो कि हरेक नू इक्वल राइट और लिबर्टी आज़ादी होवे हरेक परसन नू। चैक ऑन गवर्नमेंट एजेंसीज, इट इज़ ऑफन सेड दैट गवर्नमेंट एजेंसीज मिसयूज देयर पावर एंड वायलेट ह्यूमन राइट्स। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी जो प्रोसीजर बने हुए उसनू फॉलो नहीं करदियाँ, लेकिन की करदियाँ वो एक्सप्लॉयट करदियाँ जो पीपल विकर सैक्शन दे होंगे, ठीक है, जिन्होंने कोल पावर्स नहीं होंदियाँ उसनू एक्सप्लॉयट करदी है। सो गवर्नमेंट एजेंसीज के विच बहुत ज़्यादा होंगे। सपोज स्टूडेंट्स आप अगर कोई भी गवर्नमेंट सरकारी अदारे विच जाने, उत्थे की है जो जिहदी सिफारिश लगी होंदी है ना उसनू पहल दी जाती है। उसी तरीके नाल कहा गया है कि चैक ऑन द गवर्नमेंट एजेंसीज, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, जो भी एजेंसीज है उसके उत्ते चैक ऑन करना चाहिए, उसनू चैक करना चाहिए कि उत्थे इस तरीके का बिहेवियर ना होवे, उत्थे इक्वल राइट्स होण हरेक नू, ठीक है, मिसयूज ना करन पावर्स नाल। रूल ऑफ लॉ टू प्रिवेल, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड live a peaceful life without disturbing the rights of others. Some peoples are exploited by misusing laws and power enjoyed the government authorities. Laws should be implemented properly without any prejudice toward any section of the society. Human rights will be violated if anybody feels the laws have been misused against them under some prejudice. Rule of law to prevail. इट मीनस कि हरेक ह्यूमन बीइंग नू राइट है कि वो अपनी शांति दे नाल अपनी लाइफ नू बतीत कर सके, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग, किसी दूजे परसन को डिस्टर्ब ना करे, अगेंस्ट ना जावे उससे, ठीक है, कोई भी जो लॉज बने हैं उसनों एक्सप्लॉयट ना करे। सो गवर्नमेंट नू भी की चाहिए कि वो सारे लॉज नू प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें, कोई भी सोसाइटी नू एक्सप्लॉयट ना करके सारे लिए इक्वल लॉज बनावे, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, जो भी लॉज बने हैं उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करे। बेसिक ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी ओवररिडन बाय अदर लेजिस्लेशन और पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। Law should be implemented for the welfare and safety of the human being, not to create any rift or prejudice against the various section of the society. सेम गल ही है कि वो हरेक परसन नू ध्यान दे विच रखे, इदा ना होवे किसी जो लॉज बनाते जो हायर सोसाइटी है, जो विकर सैक्शन है उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, ठीक है, उन्होंने अलग रूल बनाते, इदा ना होवे हरेक नू इक्वली रख के लॉज बनाने हैं, ठीक है। जो ह्यूमन राइट्स है उस दे नाल कोई भी धक्का नहीं करना, बहुत सारी सोसाइटी नू इक्वली रख के राइट्स बनाने हैं, ठीक है। यही है अपना केसेस फॉर ह्यूमन राइट्स।
इत्थे अपना टॉपिक ह्यूमन राइट्स कंप्लीट होंदा स्टूडेंट। नैक्सट आप देखते हैं पेज नंबर 14.12 ओपन करो। 14.12 इत्थे अपने कोल टॉपिक है रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट दी प्रोटेक्शन लई की बिजनेस से रोल है, ठीक है। 14.12 पेज नंबर ओपन होना चाहिए स्टूडेंट्स। इस दे विच अपने कोल कुछ पॉइंट्स ने, देखते हैं आप बिजनेस का की रोल है कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करे। ये बेसिक से पॉइंट है, वेरी ईजी है। फर्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल वेस्टेज शुड बी रिसाइकल्ड एज फार एज पॉसिबल। इंडस्ट्रियल वेस्टेज शुड बी रिसाइकल्ड एज फार एज पॉसिबल। जो भी इंडस्ट्रियल का वेस्टेज होगा उसनों रिसाइकल किया जाए जिन्ना वध तो वध हो सकता है। ऑल टाइप ऑफ इमिशनस इन द एयर शुड बी साइंटिफिकली ट्रीटेड बिफोर देयर रिलीज़। जो भी गैसिस पोल्यूशन एयर दे विच छड्डिया जाता है उसनों पहला साइंटिफिकली ट्रीट किया जाए, आफ्टर दैट रिलीज़ किया जाए, सो दैट कि जो एयर पोल्यूशन है उसनों कंट्रोल किया जाए। प्लांट एंड मशीनरी शुड बी मॉडर्नाइज। प्लांट एंड मशीनरी भी न्यू टाइम टू टाइम टैक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाई जाए। इस दे नाल की है जो पोल्यूशन है उसनों कंट्रोल किया जा सकता है। वेरियस लॉज एंड रेगूलेशंस डिवाइस फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन शुड बी इंप्लीमेंटेड। जो भी रूल्स है रेगूलेशन है फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वो भी फॉलो करने चाहिए। द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विल आल्सो हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं। द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मैथड्स विल आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग नॉइज। जो प्रोडक्शन मैथड है उन्होंने भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, तो वो की है हेल्प करते बहुत टाइप ऑफ वेस्टेज को कंट्रोल करने दे विच। The business houses should help in creating an ecological balances in the environment by planting trees, keeping cleanliness around the premises। गवर्नमेंट नूं की है बिजनेसिस नूं की है कि जो अपने इन्वायरमेंट है उसनूं ध्यान दे विच रखना है कि इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ट्रीज प्लांट करे, प्लांटिंग ट्रीज एंड अपने आला दुआला जो बिजनेस का आला दुआला है उसनूं भी क्लीन रखे। Business concern should set apart some funds for creating awareness about good environment। गवर्नमेंट बिजनेसिस नूं की करना चाहिए, कुछ फंड्स कुछ पैसा कुछ प्रॉफिट अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि लोगों को अवेयर कर सके अबाउट द इन्वायरमेंट, अबाउट द गुड इन्वायरमेंट, हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देयर इन्वायरमेंट। द प्रोडक्ट्स टू बी डिवेल्प शुड बी इको फ्रेंडली। जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो इको फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है। यही सीगे रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस तरीके नाल की जा सकती है इन्वायरमेंट की। स्टूडेंट्स आई होप तुहानूं ये टॉपिक कंप्लीटली समझ आया होगा। अज का अपने टॉपिक के विच आपां की पढ़े ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन केस फॉर द ह्यूमन राइट्स और द मैजर्स फॉर रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओके।